नमस्कार 99 न्यूज के शिल्पांचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। पूरे देश में बढ़ते कोरोना को देखते हुए सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है, जिसके बावजूद रानीगंज में एक स्कूल है जो खोलकर सभी बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं। वहीं स्कूल प्रबंधन ने सभी अभिभावकों से यह लिखा लिया है कि कोई छात्र अगर कोरोना संक्रमण का शिकार होता है तो उसकी जिम्मेदारी अभिभावक की होगी। इस मामले को लेकर एक अभिभावक ने कहा कि सभी अभिभावकों को एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए। মানে একটা প্যান্ডামিক সিচুয়েশন চলছে পুরো দেশভর, স্কুল তো বন্ধ, মানে অনেক তো আপনার এক্সামও পিছিয়ে গেছে, ক্যান্সেলড হয়েছে। তো আজকে এসকে স্কুলে এখানে 8 to 11 পর্যন্ত ক্লাস হচ্ছে। তো এই বিষয়টা আপনাদের কাছে সিগনেচার করানো হচ্ছে। কেউ কোনো স্টুডেন্ট যদি কোভিড পজিটিভ হয় তো দায়িত্ব দায়িত্ব হচ্ছে মানে গার্জেনের। তো এই বিষয়টা কী হিসাবে দেখছি? দেখুন, এটা গার্জেনরা সবাই যদি একসঙ্গে না বলে তো এ তো মুশকিল না, একা পক্ষে সম্ভব নয়। গার্জেন সবাইকে একসঙ্গে বলতে হবে সব কিছু, প্রিন্সিপালের কাছে যে গার্জেনরা তো সমস্ত সবাই একসঙ্গে কিছু বলছে না। সেটা তো নিশ্চয়ই। আপনার কি মনে হচ্ছে বিষয়টা? এটা তো স্কুলটা আশা করি মানে যদি ঠিক মতন সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনে যদি চালাতে পারে তাহলে ঠিক আছে। पश्चिम बंगाल के नववर्तमान मंत्री श्यामल सांतरा ने कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए आज बांकुड़ा के गोगड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों को दी जाने वाली सेवा, ऑक्सीजन की आपूर्ति, वैक्सीन के दूसरे डोज के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने कुछ मरीजों के साथ बातचीत की। আমরা এখন কোভিড একটা পরিস্থিতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, নিশ্চয়ই আপনারা জানেন। ভারতবর্ষ সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আক্রান্ত হচ্ছে, তা আমাদের রাজ্যেও এখনও বেশ কিছু মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। বিভিন্ন আইসোলেশন সেন্টার, বিভিন্ন হসপিটাল, আমরা বিভিন্ন জায়গায় যখন যাচ্ছি সেগুলোকে একটু ঘুরে ফিরে দেখা হচ্ছে বা সেখানকার পরিস্থিতি কেমন কী চলছে। এছাড়া ভ্যাকসিনেশন প্রক্রিয়া চলছিল, ভ্যাকসিন নিচ্ছেন, সেকেন্ড ডোজ চলছে, সেই সেকেন্ড ডোজের মানুষরাও দাঁড়িয়ে রয়েছে। সুতরাং এই একটা बांकुड़ा के ओंदा गांव में रहने वाले एक परिवार की एक मासूम बच्ची पिछले कई महीनों से किडनी की बीमारी से जूझ रही है, मगर इस परिवार के पास इतने पैसे नहीं हैं कि बच्ची का इलाज करवा सके। इस 4 साल की बच्ची की मां पैसों के लिए एक स्थानीय होटल में काम करती है। बच्चों के पिता एक शोरूम में, तो वहीं बच्ची की दादी भी ब्लॉक के कैंटीन में काम करने को मजबूर है। तीनों की कमाई से जो भी पैसे आते हैं उनसे घर का खर्च निकालने के बाद किसी तरह बच्ची का इलाज करा रहे हैं, मगर अब इस परिवार के लिए बच्ची का इलाज कराना मुमकिन नहीं हो गया है। बच्ची के माता पिता सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी बच्ची के इलाज में मदद की जाए। ছোট থেকে ওর এরকম অবস্থা, ও 2 মাস বয়স থেকে ওর সমস্যা হচ্ছে, কিন্তু আমার যা ছিল সব দিয়েছে, আর আমি পেরে উঠতে পারছি না। তার জন্য আপনাদের সঙ্গে সাহায্য চাচ্ছি। আমার স্বামী বাপিদের, আমরা সন্ধ্যাতে বসবাস করি। আমার মেয়ে 20 মাস বয়স থেকে কিডনি রোগে আক্রান্ত। এই অবস্থায় আমরা ওর চিকিৎসা চালিয়ে উঠতে পারছি না। খুব ছোটো থেকে ওর চিকিৎসা চালানোর জন্য আমরা যেখানে যা ছিল সব শেষ হয়ে গেছে। এর জন্য আমরা সকলের কাছে আবেদন করছি, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ যে যতটুকু পারবেন। এমন একটি পরিবারের কাছে গেছিলাম, যে পরিবারের একটি ছোট্ট শিশু আছে। তো তার মানে ছোটোর থেকেই কিডনির প্রবলেম। তো এখন তার মাসে 4,000 টাকার মতন ওষুধ লাগে। তো তার বাবার মাসিক ইনকাম 5,000 টাকা। তো আপনাদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ যে এই ছোট্ট শিশুটাকে আপনারা কিছু টাকা দিয়ে এই বাচ্চা মেয়েটিকে সুস্থ করে তুলুন, এবং তার বাবা তার মা এই বাচ্চাটিকে ভালো করে তোলার জন্য সর্বশান্ত হয়ে গেছে। তাই আপনাদের কাছে একান্তই আবেদন যে আপনারা কিছু টাকা দিয়ে এই বাচ্চা মেয়েটিকে আবার নিজে সুস্থ। कुल्टी के सीतारामपुर के कुमरडीहा उप स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लेने के लिए आज सुबह से ही सैकड़ों लोगों की कतार लगी हुई थी। लोग आपस में एक दूसरे से सटे हुए, सामाजिक दूरी का नाम भी कहीं दिख रहा नहीं है। इस बीच अचानक थोड़ी देर बाद लोगों के बीच नोकझोंक की स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना के बारे में पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर आकर स्थिति को संभाला गया।
এটা করোনা ভ্যাকসিনের লাইন। আচ্ছা, এটা প্রথম ডোজ না দ্বিতীয় ডোজ? এটা ফার্স্ট ডোজ নিতে এসছি, আজকে ফার্স্ট ডোজও নেবে আর সেকেন্ড ডোজও নেবে। সেকেন্ড ডোজ নেবে 50টা, ফার্স্ট ডোজ নেবে 50টা। আচ্ছা। তা আমরা 4টে ভোর থেকে লাইন দিয়ে আছি। আচ্ছা। লাইনে নাম লেখা হলো, আমার 14 নম্বরের নাম ছিল, 33 নম্বরে আমার লাইন এলো, লাইন দিলাম, অন্য লাইন হলো, লাইনের সামনে গেলাম, আমার এন্ট্রি হলো না, বেরিয়ে দলে ভিড়ের জন্য। আপনারা করোনা সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচার জন্য ভ্যাকসিন নিতে ভ্যাকসিন এসেছেন, নিতে এসেছি। কিন্তু এই যে ভিড়, এই গা ঢেসাঢেসি, এতে তো আরো করোনা সংক্রমণ বাড়বে। শুনছে না তো, কাকে শুনছে না বললেন? তো। কাকে বললেন? কাকে বললেন যে শুনছে না? প্রত্যেককে বলে, যারা আমার আশেপাশে সামনে দাঁড়িয়ে প্রত্যেককে বলেছে লাইনে লাইন নিলেন, केवल लाइन। हाल ही में रानीगंज के तिलक रोड इलाके में एक जर्जर इमारत की बीम टूटकर गिरने से मकान के नीचे से गुजर रहे कार्तिक दे नामक एक युवक की मौत हो गई थी। गुरुवार को हमारे संवाददाता ने रानीगंज के कई पुराने भवनों का जायजा लिया और उनके मालिकों से बात की। लोगों ने कहा कि यह सभी भवन काफ़ी पुराने हैं, कोई 50 साल तो कोई भवन 70 साल पुरानी है। इनमें से किसी भी भवन की मरम्मत नहीं की गई है। इन भवन की हालत इतनी जर्जर है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। আন্দাজ একটা 50 বছরের উপরে না। আচ্ছা, এই যে সামনে থেকে দেখা যাচ্ছে বট গাছ তো আছেই, লেগে পুরো পোর্শনটা কিছুটা ভেঙেও পড়েছে। এই এখান থেকে এই যে এটা পড়েছে ভেঙে, তো এই বিষয়টা ভেঙে তো পড়েছে, ওটাই। তো আপনারা কোনো রিকনস্ট্রাকশনের কোনো ব্যবস্থা করছেন? কথাবার্তা করছে বড় অফিসে বা ইয়েতে জানিয়েছেন? কেন জানাবো? 70-80 বছর হয়। তো এই বাড়ির সামনের এরিয়াগুলো, এই যে তাকগুলো আছে, এগুলো তো পুরো ক্র্যাক করে যে কোনো মুহূর্তে তো আপনার পড়তে পারে। তো এই বিষয়টা নিয়ে আপনারা কাউকে জানিয়েছেন বা কিছু মেরামতের ব্যবস্থা কিছু? মেরামত তো করছে, ওপর থেকে ভাঙতে আসে, এটা ভাঙতে चाहिए इस सबको एक तो बड़े ये करके कोई व्यवस्था करें। ये तो कॉर्पोरेशन को करना चाहिए। मतलब कभी भी दुर्घटना घट सकती है। एक दो बिल्डिंग, विशेष करके जीसी मंडल में यही बिल्डिंग सबसे पुरानी है। लगभग कितनी पुरानी होगा सर? बहुत पुरानी होगी। हम लोग जितने दिन से आए हैं मैंने हम लोग तो यहाँ 30 साल से लगभग हैं, इस स्कूल से रिलेटेड हैं, लेकिन ये लगभग लग रहा है 70-80 साल पुराना है, जैसा सुनने को कंस्ट्रक्शन का काम भी नहीं हुआ ना। बंगाल विधानसभा चुनाव का 8वां व अंतिम चरण का मतदान गुरुवार को संपन्न होगा। सुबह 7 बजे से वोट डालना शुरू हो गए हैं। कोरोना महामारी के बीच यह वोट डाले जा रहे हैं। 294 सीटों वाली राज्य विधानसभा के 8वें एवं अंतिम दौर में कोलकाता की 7 विधानसभा सीटों समेत बीरभूम की 11, मुर्शिदाबाद की 11 और मालदा जिले की 6 सीटों समेत 35 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 2 मई को मतगणना होगी। मतदान खत्म होने के बाद शाम 6:30 बजे के बाद विभिन्न न्यूज़ चैनल्स के एग्जिट पोल दिखाएंगे कि बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है। बंगाल विधानसभा चुनाव का 8वां व अंतिम चरण का मतदान गुरुवार को सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। कोरोना महामारी के बीच यह वोट डाले जा रहे हैं। 294 सीटों वाली राज्य विधानसभा के 8वें एवं अंतिम दौर में कोलकाता की 7 विधानसभा सीटों समेत बीरभूम की 11, मुर्शिदाबाद की 11 और मालदा जिले की 6 सीटों समेत 35 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 2 मई को मतगणना होगी। अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने उत्तरी कोलकाता के काशीपुर बेलगछिया के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने पहले कभी भी इतनी शांति से मतदान नहीं किया था। मेरी तरफ से सभी सुरक्षा कर्मियों को बधाई। बीरभूम जिले के नानूर इलाके के बेलूटी गांव में चुनाव के दौरान बमबाजी किए जाने की सूचना है। इसका आरोप तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगा है। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के पोलिंग एजेंट को भी बैठने में बाधा पहुंचाई है। पुलिस बम के अवशेष को जब्त की है, मामले की जांच कर रही है। कूचबिहार जिले के सीतलकुची के 126 नंबर बूथ पर पिछले दिनों चुनाव के दौरान सीआरपीएफ द्वारा कथित तौर पर चलाए गए गोली से 4 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद वहां मतदान को रद्द करना पड़ा था। आज एक बार फिर यहां मतदान कराया जा रहा है। सुबह से ही कोरोना प्रोटोकॉल और कड़ी सुरक्षा के बीच लोग यहां मतदान कर रहे हैं। हालांकि पहले की तरह इस बार इतना उत्साह लोगों में नहीं दिख रहा है।
দিয়ে তুমি এইদিকে চলে যাও। হ্যাঁ, গাড়িটা কিন্তু 100 মিটার দূরেই আছে। আর ওনারা একটা অভিযোগ করেছেন আমাদের গাড়ি। প্রশ্ন হলো 100 মিটারের মধ্যে কোনো ফ্ল্যাগ রেস্টুন ব্যাস নিয়ে ঢোকার কথা নয়। বিজেপি যে কমিশন যে বিজেপির কথায় চলছে দালালি করছে তার স্পষ্ট প্রমাণ। আজকে এত নিশ্চদ্র পাহারা, তার মাঝে বিজেপির ফ্ল্যাগ নিয়ে গাড়ি ঢুকে যাচ্ছে এই রকম সেনসিটিভ একটা বুথে। তাহলে তারা ভোটের নামে কি প্রহসন করেছে? কমিশনের যারা দায়িত্বে আছে পুলিশ প্রশাসন থেকে অবজারভার, তারা চোখে অন্ধ, তারা দালালি করছে বিজেপির। এটা আজকে প্রমাণ তার। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीरभूम जिले के मयूरेश्वर विधानसभा के 189 और 190 बूथ के पास कथित तौर पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ता विश्वजीत मंडल पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घटना के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष है। নির্বাচনের দিন ময়ূরেশ্বর 290 বিধানসভা কেন্দ্রে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত ঝামেলা শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের আশ্রিত গুন্ডারা। তারই প্রতিস্বরূপ বিডনগরী বুথ 289-290 এখানেও ঝামেলা করেছে। আমার নিজের ভাই বিশ্বজিৎ মণ্ডলকে তৃণমূল আশ্রিত গুন্ডা লেবু বাগদি, উদয় বিশ্বাস, প্রভাত বিশ্বাস ওরফে ফিলিপ বিশ্বাস এবং আরও কয়েকজন মিলে এরা যেভাবে অতর্কিত আক্রমণ করেছে, এতে আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম এবং খুব চিন্তাই করলাম যে একটা পুরো হিন্দু মেজরিটি গ্রাম, এই গ্রামে আমার বাড়ি, এই গ্রামে প্রত্যেকের সঙ্গে একটা সুসম্পর্ক আছে। कोलकाता में 8वें और अंतिम चरण के मतदान जारी है। कड़ी व्यवस्था के बावजूद महानगर के महाजाति सदन के पास बम फेंके गए हैं। बताया जा रहा है कि सुबह कार सवार लोगों ने बम फेंके। बम फटने के बाद अफरा तफरी मच गई। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने इस घटना को लेकर घटना का पूरा विवरण मांगा है। जाँच के बाद ही घटना की जानकारी सामने आएगी कि आखिर इस घटना के पीछे किसका हाथ है। रानीगंज के 89 नंबर वार्ड इलाके में टीएमसी अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष इंतकाब खान
लगभग 1000 लोगों में पवित्र रमजान के मौके पर खाने के पैकेट बांटे हैं। इस संदर्भ में इंतखाब खान ने कहा कि चूंकि अभी कोरोना महामारी का समय है, यही वजह है कि इफ्तार का आयोजन नहीं किया जा रहा है, मगर रमजान के महीने में कोई भूखा ना रहे, इस वजह से कोरोना से संबंधित सभी नियमों का पालन करते हुए तकरीबन 1000 लोगों में खाने के पैकेट बांटे गए। हम लोगों का रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। इस महीने में अभी कुछ ही दिन हुए, 2 दिन हुए बोट गए हैं। इसके वजह से और कोरोना काल को देखते हुए हम लोगों ने अफ्तार पार्टी की जगह कैंसिल करके एक छोटा मोटा प्रोग्राम किया है, जिसमें तकरीबन हज़ारों लोगों को हमारे तरफ से, माइनॉरिटी सेल की तरफ से बिरयानी और हलीम का तकसीम दिया जाएगा। टोटल कितने लोग? 1000 लोगों का है तकरीबन। अभी के इस शिल्पांचल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहना 99 न्यूज। नमस्कार।